First of all, I'm Harsh. Hello, everyone. Recently in JEE Advanced Result 2021, I got All India rank 1304, and previously in JEE Means Result, I got All India rank 4700, something like that. I'm not saying that this rank is very very good or you should appreciate me a lot that I got a good rank, not a very good rank, but okay. But the point that I want to highlight is that I prepared everything for my JEE Mains and for my JEE Advanced. You can say in like almost 9 months, and I got extra 3 months time due to this COVID. I started my preparation almost in April 2020. I wasted my whole of 11th class because I don't know what JEE was. We have to prepare such a vastly, such hugely for an exam like a JEE at the age of, I would say, like 16, 17, 18. Everything was good. I was a complete schoolboy who just wanted to score very good marks in 12th boards. I got good marks in 10th board, so I wanted to get very good marks in 12th board. This was just enough for me. I didn't want to do anything else because I didn't know there was more opportunities so we can do in there after. So when I entered in 11th, I was doing well in good in those school examinations and all that stuff. I realized that I topped the whole of 11th class science section. I was shocked at what happened. I used to top, but I used to get like 5th or 6th rank in that class of almost 150 students. But this time I got first rank, so I was astonished to know that I got first rank. Then I realized that all those guys who are toppers, they are what doing. Then I realized that they were preparing for some exam so-called IIT JEE or JEE Advanced or JEE Means. Then I got interested in that exam, so I decided to know from them. I used internet, YouTube to search what this exam really is. Then I found it that there was a very prestigious exam so-called JEE Advanced, which a student can give in 12th class after 12th or after 1 year drop, 2 attempts only. And if you qualified, then you have the chance to go in the prestigious colleges of our nation, IITs, Indian Institute of Technology. I realized that there is a direct way of getting into such a prestigious college named IIT just by giving an exam, JEE Advanced. Then I told the entire scenario to my father. Then we fighted. We realized that there is urgent need to get into a coaching for a preparation of this exam. Then I was fortunate enough that we got a coaching. And then in 12th standard, in the beginning of 12th standard, I took the coaching, a very prestigious coaching in Jaipur. Actually I live in Jaipur, so I took that coaching in Jaipur. I will try for JEE exam, and I'll prepare for JEE Means. My focus was on JEE Means, that I'll prepare very good in very good way for JEE Means. तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि भैया अपन को तब JEE Means देना है, तो फिर अपनी कोचिंग मैंने सीरियसली शुरू की। अब सीरियसली शुरू की तो मेरे साथ पहली दिक्कत ये आई कि अब 11th का तो पूरा बर्बाद था, क्योंकि कुछ पढ़ाई वढ़ाई की थी वो स्कूल लेवल की थी। अब इतना तो मेंटेलिटी में होता है कि थोड़ा कि नहीं होगा यार, स्कूल से नहीं होगा, अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स करनी पड़ेगी। तो मुझे एच सी वर्मा का नाम, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ दिस बुक, एच सी वर्मा। आई लव इट। तो फिर मुझे लगा कि यार ये एच सी वर्मा बुक है, ये करनी होगी अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, अपन को नोट्स अच्छे चाहिए, ये सब चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी ना, तो खुद का दिमाग मत लगाओ इस सब चीज़ों के अंदर। मतलब कि मैं ऐसे प्रिपरेशन कर लूँगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ऐसे करके ऐसे ख़त्म कर दूंगा। सब नहीं, कुछ नहीं करना। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ वही करना है जो अपने टीचर्स अपन को बोल रहे कि बेटा तुम ये कर लो, बस ख़त्म, वही करना और कुछ नहीं करना। खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं किया, ताकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारों का हुआ भी डेफिनेटली। आई एम वन ऑफ दोज, आई एम लकी इनफ टू बी वन ऑफ दोज। लेकिन अब मुझे
एक चीज़ समझ में आई कि जो गलतियां हो सकती है वो यही हो सकती है कि खुद का दिमाग लगाने लग जाते हैं कि टीचर ने बोली ये बुक करनी नहीं, एच.सी. वर्मा के लिए बोल दिया फिजिक्स टीचर ने कि एच.सी. वर्मा इज अ वेरी गुड बुक, इट इज़ सफिशियंट, तो मान लो कि हाँ वो सफिशियंट है। और अगर एक दो क्वेश्चन उससे बाहर भी आते हैं या फिर आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं तो ये नहीं उन दो क्वेश्चन के लिए अपनी रोड ऑफ लगा देंगे, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, जैसे जेई मीन्स के अंदर अगर अपन मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अपने, मेरे पास जेई मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम मार्क्स थे, जेई मीन्स सेकंड अटैम्प्ट में भी ऑलमोस्ट उतने ही थे, फिर थर्ड अटैम्प्ट में थोड़े बढ़े क्योंकि 3 महीने का गैप आ गया था कोविड की वजह से। फिर जेई मीन्स फोर में काफ़ी अच्छी परसेंटाइल हो गई, 99.56 परसेंटाइल हो गई मेरी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद जी एडवांस था, तो उसके अंदर तो फिर मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब अच्छी रैंक आ गई, 1000 की ऑल अराउंड रैंक आ गई मेरी, तो आई वॉज लकी इनफ। लेकिन बात यह है कि उस वक्त का आपने कैसे यूज़ किया। मेरी पूरी 11th वेस्ट थी, तो मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, खुद कोई दिमाग नहीं लगाया। सबसे पहले टीचर्स को बात की, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, मैंने टीचर्स से बात की, टीचर्स ने बिल्कुल सही सही तरीके बता दिए, बट तुम्हें ये करना है तुम ये कर लो। अब जैसे ये इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें, बट मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सब कैसे किया मैंने। 9 मंथ्स का जो इंटरवल था उसके अंदर मैंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया उसके अंदर, बस मैं वो बता रहा हूँ अभी। तो उसके अंदर मुझे बड़ा वो हुआ, स्टार्टिंग में किया तो बड़ा टफ लगता, बोलते हैं कि जो सबसे पहला, जैसे कि अपस्टेयर्स जाते हैं तो सबसे बड़ा जो जंप होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप पे होता है कि बस उससे अपन एक बार कर लेते, तो बाकी सब तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही मेरे साथ हुआ कि पहली बार तो मैं काफ़ी डर गया कि भाई ये सब नहीं हो सकता, इतने सारे हर बार कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, हर बार कुछ करते हैं और कुछ खतरनाक सा हो रहा है, तो नहीं बैठेगा ये। लेकिन जब धीरे धीरे प्रोसेस में हुआ, बात हुई टीचर्स से, मैंने खुद ने थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्लास में करवाते उनको किया। मैं क्या पहले जो पढ़ा दिया एक बार वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया करता था साथ के साथ ही, मेरी कोशिश रहती थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या नोट्स तो बना नहीं पाते थे, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे थे वो पढ़ा दिया करते थे, नोट्स नहीं बना पाते थे, वो थोड़ा जल्दी चलता था। और मेरा बैच भी वही था कि जिनके अंदर 11th प्लस 12 दोनों पढ़ाना है, तो दोनों पढ़ाना है तो और तेज चलना है, तो वो नहीं हो पाता था। तो मैं क्लास एंड होने के बाद, when the class used to end, I used to sit on my table, I used to make notes of this that class in my register, and it was like I was lucky enough, or this was my best decision I took in this preparation. Making notes is at most important, and I would say one more thing that is most at most important is खुद की मत सुनो, जो टीचर्स बोल रहे हैं अपना दिमाग मत लगाओ, जो टीचर्स बोल रहे हैं नोट्स बनाए, फिर नोट्स के साथ अच्छी प्रिपरेशन करता रहा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब जो मैं बोलूँगा कि नोट्स खुद की मत सुनो, जो टीचर्स बोल रहे हो वो सुनो, उनका एक्सपीरियंस लो कि क्या गलतियाँ हो जाती है, हर बार कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, तभी तो सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता, या फिर कंपटीशन टफ होता है, पर ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ करना होता है या बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। एक गाइडेंस है, मतलब एक गाइडेंस में रहो। व्हाट आई वांट टू से इज बी इन गाइडेंस ऑफ समवन हु नोज व्हाट एक्चुअली जेई एडवांस इज और व्हाट जेई मींस इज। नोट्स गाइडेंस सबसे ज़रूरी है, वो है बी कंसिस्टेंट, लगातार पढ़ते रहो। मार्क्स नहीं आ रहे, कोचिंग के टेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर पढ़ते रहो, मतलब बी कॉन्सिस्टेंट। अब ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ 101% रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, मतलब तुम्हारा नहीं निकलेगा तो निकलेगा किसका पेपर? तुम जैसे बच्चों का ही निकलता है, मुझ जैसे बच्चों का ही निकलता है, हम लोगों का ही तो निकलता है रिजल्ट, हम ही लोग देते हैं रिजल्ट, हमारा ही होता है सिलेक्शन, हम लोग ही जाते हैं IIT के अंदर। तो इसके अंदर एक ये अच्छा फैक्टर है, इन तीनों चीज़ों को जो फॉलो करेगा, नोट्स, गाइडेंस, और थर्ड इम्पॉर्टेंट बी कॉन्सिस्टेंट, कि पॉजिटिव सोचो कि हाँ होगा सिलेक्शन, और होगा, डेफिनेटली होगा, अपना नहीं होगा किसका होगा सिलेक्शन। सो बी पॉजिटिव, पढ़ो। और जो आगे का मैंने बताया कि 11th का बैकलॉग मैंने कैसे कवर किया, या फिर मैंने जो जंप्स मारे, जैसे 98.77 मेरी जेई मीन्स में फर्स्ट जो आई थी परसेंटाइल फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो इतनी थी। फिर मेरी 99.36 हुई, फिर मेरी 99.56 हुई फाइनल अटैम्प्ट में, और फिर उसके बाद मेरी 4700 रैंक थी जेई मीन्स में, जेई एडवांस में 1300 रैंक हुई। तो वो जंप कैसे मारे, वो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँ,
सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपरेशन करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं।